ایک قدیم پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک درزی رہتا تھا۔ درزی اپنی دکان میں کام کر رہا تھا کہ ایک گویا یعنی گلوکار آیا اور اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کر گانا بجانے لگا۔ درزی کو گویے کی آواز اور گانا بہت پسند آیا۔ درزی نے گویا سے کہا، آج رات تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہارا گانا سنوں گا اور جو ممکن ہوگا تمہیں انعام دوں گا۔ شام ہوتے ہی درزی گھر جانے لگا تو وعدے کے مطابق گویا بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچ کر درزی نے اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے کھانا تیار کرو، میں ایک ایسے گویے کو اپنے ساتھ لایا ہوں جس کی آواز میں بہت خوش کن ہے۔ بیوی نے کھانا تیار کیا اور کھانے میں مچھلی پیش کی۔ درزی نے گویے کو ساتھ بیٹھا لیا اور سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے دوران اتفاقاً گویا کے حلق میں ایک کانٹا پھنس گیا۔ درزی نے ہر ممکن کوشش کی کہ کانٹا نکال دے مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ گویا بد نظمی سے زمین پر گر گیا اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ درزی بہت فکر مند ہوا کہ کہیں گویا کے قتل کے الزام میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد درزی کی ذہن میں آیا، ایک ترکیب آئی۔ اس نے گویا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حکیم کے گھر کے دروازے تک پہنچ گیا اور دروازے کھٹکھٹایا۔ اندر سے بندے نے آ کر غصے سے پوچھا، کیا کام ہے؟ درزی نے 5 دینار جنیز کی ہتھیلی پر رکھے اور کہا، جلدی سے حکیم صاحب کو بلا دو، ایک مریض ہے دکھانے کے لیے۔ اور درزی نے گویا کو دروازے کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا اور خود واپس گھر آ گیا۔ اب حکیم صاحب باہر آئے کہ مریض دیکھیں تو وہ گویا نیچے گر گیا۔ حکیم نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص مر چکا ہے۔ حکیم صاحب بہت گھبرائے کہ کہیں اس مرد کی موت کا الزام میرے سر نہ آ جائے۔ وہ گھر جا کر بیوی سے مشورہ کرنے لگے۔ اتفاقاً ان کے پڑوس میں بادشاہ کا ایک ملازم رہتا تھا۔ اب میاں بیوی نے گویا کی لاش اٹھا کر اسی ملازم کے گھر میں رکھ دی۔ کیونکہ بادشاہ کا ملازم اس وقت تک گھر واپس نہیں آیا تھا، آدھی رات کے بعد جب بادشاہ کا ملازم گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے سوچا شاید یہ کوئی چور ہے، اور دیکھا نہ تو اس ملازم نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور گویا کی لاش پر مارنا شروع کر دیا۔ گویا کی لاش زمین پر گری۔ ملازم جب قریب جا کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ آدمی پہلے ہی مر چکا ہے۔ ملازم بہت گھبرا گیا اور اس گویا کی لاش کو اٹھا کر بازار میں کسی دکان کے سامنے رکھ دیا۔ اتفاقاً ایک فرنگی سوداگر کسی دعوت سے واپس آ رہا تھا۔ جب اس کی نگاہ گویا پر پڑی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی چور دکان کا تالا توڑ رہا ہے۔ چنانچہ وہ شور مچاتے ہوئے دوڑا اور ایک ڈنڈا اٹھا کر گویا کی لاش کو مارنے لگا۔ لاش نیچے گری اور شور سن کر کچھ اہل محلہ اور سپاہی وہاں جمع ہو گئے۔ گویا کی لاش میں دیکھ کر سپاہیوں نے فرنگی کو گرفتار کر لیا اور اس لاش کے ساتھ فرنگی کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ قاضی صاحب نے جب معصوم گویا کی لاش دیکھی تو فرنگی کو قتل قرار دے کر پھانسی کا حکم سنا دیا۔ سارا شہر اعلانوں سے گونج اٹھا کہ فرنگی کو پھانسی دی جائے گی۔ لوگ جوش و خروش سے پھانسی دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ابھی فرنگی کو پھانسی نہ دی گئی تھی کہ بادشاہ کا وہ ملازم آگے بڑھا اور کہنے لگا، اس گویا کا قاتل یہ فرنگی نہیں، میں ہوں۔ قاضی نے جب یہ بات سنی تو ملازم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اب فرنگی کی جگہ بادشاہ کے ملازم کو پھانسی ہونا تھی۔ اتنے ہی حکیم صاحب آ کر بڑھ کر بولے، بادشاہ سلامت، یہ ملازم بالکل بے قصور ہے۔ قاضی صاحب نے حکیم صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ادھر درزی نے اپنا سر جھکایا اور کہا، حضور یہ سب قصور ہے، یہ گویا تو میرے گھر سے مرا تھا۔ اب قاضی صاحب پریشان ہوئے کہ یہ معجزہ کیا ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے ایک چاروں کو لاش کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور مقدمے کی مکمل کارروائی کی۔ بادشاہ نے جب ساری باتیں سنی
तो कहा, तुम सब अपनी अपनी दास्तान जिंदगी बयान करो। अगर तुम्हारी दास्तान जिंदगी गवैया की दास्तान से मुख्तलिफ साबित हुई तो मैं तुम से सबको रिहा कर दूंगा, वरना तुम सबको इस गवैया के कत्ल के इल्जाम में फांसी दी जाएगी। सबसे पहले फरंगी सौदागर ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ और एक सौदागर हूँ। मेरे वालिद आलिया दर्दमंद का काम किया करते थे और मेरे वालिद के बाद मैंने भी यही पेशा इख्तियार किया। एक रोज एक नौजवान घोड़े पर सवार आया और गंदम का नमूना दिखाकर मुझसे दाम दरियाफ्त करने लगा। मैंने 100 दरहम फी मन कहा तो वो कहने लगा कि अगर कोई खरीदार हो तो फलां सजाए सराय में आकर मामला तय कर लेना। बाद अज़ा मैंने कुछ सौदागरान से बात की और फी मन 110 दरहम के साथ सौदा तय कर लिया। मैं उन सब को लेकर उस नौजवान के पास सराय में पहुंचा तो उन सब सौदागरान ने उस नौजवान का सारा माल खरीद लिया, जिसकी कीमत तकरीबन 200,000 दरहम थी। उस नौजवान ने 1500 दरहम मेरा हिस्सा मेरे हवाले किया और बाकी रकम भी देकर मेरे पास अमानत रखवाई। उसके बाद 1 माह तक वो मुझे नहीं मिला। फिर एक रोज बाजार में हमारी मुलाकात हो गई तो मैंने कहा कि अपनी रकम ले जाओ। वो मुझे टालता रहा। उसके बाद 1 साल तक मैंने उसकी सूरत ना देखी। फिर कुछ अरसा बाद मैंने उसे देख लिया। वो बहुत बुरी हालत में फटे पुराने कपड़े पहने घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। मैंने इसरार किया तो वो मेरे घर आया। मुझे जो मुयस्सर था मैंने खाने के लिए पेश किया। उस वक्त देखा कि वो बाएं हाथ यानी उल्टा हाथ से खा रहा है। मैंने वजह दरियाफ्त की तो उसने अपना दायां हाथ आस्तीन में निकाल कर मुझे दिखाया जो कटा हुआ था। बादशाह ने फरंगी का ये वाक़या सुनकर पूछा कि वो नौजवान कौन था और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फरंगी ने कहा, बादशाह सलामत, वो एक ताजर का बेटा था और तिजारत के सिलसिले में मिस्र गया। वहाँ उसने अपना कपड़ा मुख्तलिफ दुकानों पर रखवाया और हफ्तावार अपना मुनाफा लेता रहता था और उसने काफी माल कमाया। फिर एक दिन जब वो वसूली के लिए एक दुकान पर बैठा था तो मैं वहाँ एक खूबसूरत औरत आई। उसे देखते ही वो अपने होश व हवास खो बैठा और उसके इश्क में मुब्तला हो गया। वो नौजवान रोज बाजार जाता और जब भी वो औरत वहाँ आती तो उसका पीछा करता। उससे मालूम हुआ कि वो कह रहा कि एक अमीर खातून है, मगर उसने हिम्मत पकड़ी और अपने इश्क का इजहार कर दिया। फिर एक दिन एक कुंजी के इसके पास आई और कहा, मलका फरमाती हैं कि आप मेरे मकान पर तशरीफ लाएं, क्योंकि इस तरह बाजार में पीछा करना मुनासिब नहीं। कुंजी ने मकान का पता बताया और चली गई। अब वो ताजर रवाना इस खातून के मकान पर जाता, शराब पीता और 50 अशरफियां इस खातून को देकर वापस आ जाता। ये सिलसिला यूं जारी रहा कि वो ताजर कंगाल हो गया और उसके पास खाने के पैसे भी नहीं रहे। एक रोज बाजार में कुछ लोग जमा थे तो उस ताजर की नजर किसी आदमी की जेब पर पड़ी जो बहुत भारी मालूम होती थी। उसने सोचा कि अब खाली हाथ इस औरत के पास जाना मुनासिब नहीं और देखा न तो उसने उस आदमी की जेब में हाथ डाला उससे पहले कि वो जेब से अशरफियां निकाल पाता। उस आदमी ने ताजर का हाथ पकड़ लिया और काजी के पास ले गया। वहां पहुंचकर ताजर ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और अपना एक हाथ गवा बैठा। फिर उसी शख्स ने उसे कुछ देकर कहा, मुझे लगता है कि तुम कोई आदि चोर नहीं बल्कि मजबूरी में चोरी करते हो। ये लो कुछ अशरफियां रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। फिर वो शख्स जहां आया और बादशाह सलामत की सल्तनत में दिन गुजारने लगा। बादशाह ने जब सारा वाक़या सुन लिया तो कहा, तुम्हारा वाक़या इस गवैया के वाक़ये से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, लिहाजा मुझे तुम्हें गवैया का कातिल करार देकर फांसी का हुक्म देना पड़ेगा। ये बात सुनकर बादशाह का अपना मुलाजिम आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा कि वो भी एक किस्सा सुनाना चाहता है जो उम्मीद है इस फरंगी के किस्से से मुख्तलिफ होगा। वही मुलाजिम कहने लगा, इसी शहर के कुशगर में चंद रोज पहले किसी जगह दावत ताम थी। जब खाना चुना गया तो उसमें
लहसुन पुलाव भी शामिल था। हम सब खुशी से खा रहे थे। जब लहसुन पुलाव की बारी आई तो एक नौजवान ने इसे खाने में इनकार कर दिया और दस्तरखान से हटकर दूर बैठ गया। जब तमाम लोगों ने इसरार किया कि तुम भी खाओ तो उसने शर्त रखी कि खाना खाने के बाद मेरे हाथ 120 मर्तबा पानी से धुलवाए जाएं। बादशाह सलामत जब हमने ये सुना तो हैरान रह गए। तब उसने अपने दोनों हाथ आस्तीन से निकाल कर दिखाए। उसके दोनों हाथों के अंगूठे कटे हुए थे और कहा कि इसी लहसुन पुलाव की वजह से मेरे दोनों अंगूठे काटे गए थे। बादशाह सलामत वो नौजवान भी एक ताजर का बेटा था मगर ज्यादा मालदार ना था। वो तिजारत के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में जाता और 4 अशरफियाँ कमाता। एक सफर के दौरान उसे भी एक लड़की पसंद आ गई। वो लड़की भी उस नौजवान को चाहने लगी। इत्तफाकन वो लड़की शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। ये नौजवान और वो लड़की छुप छुपा कर मिलने लगे और बात शादी तक पहुंच गई। चनाचा खातून शाही खानदान से थी, इसे इजाजत नहीं मिली। घर वालों से लड़ झगड़ कर उस खातून ने नौजवान से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। चुनाचा वो नौजवान शाही आदाब से वाकिफ नहीं था, इसलिए एक रात खाने में जब उसके सामने लहसुन पुलाव आया तो वो उस पर छा गया और खूब खाया। शाम को जब वो अपनी बीवी के पास गया तो उस खातून ने शोर मचा दिया, दूर हो जाओ, ये आदमी है, उसे जहाँ लाने मत दो, इसकी बदबू से मेरा दम घुटता है। बीच में कुंजी भी आई और शोर का सबब पूछा। उस नौजवान की बीवी ने कहा कि इस शख्स को किसने कहा कि लहसुन पुलाव खाए, हाथ ना धोए और मेरे पास आ जाए, इसे दूर ले जाओ, बदबू से मेरा दम फट जाता है, इसके लिए कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए। चनाचे उसने नौजवान के दोनों हाथों और पुलाव के दोनों अंगूठों काटवा दिए और लिया कि आइंदा जब भी वो लहसुन पुलाव खाएगा तो 120 मर्तबा साबन से हाथ धोएगा। मुलाजिम की ये बात कहानी सुनकर बादशाह ने कहा, तुम्हारी कहानी भी एक गवैया की कहानी से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, तुम्हें भी मौत की सजा दी जाएगी। फिर बादशाह ने हकीम की तरफ देखा। हकीम ने कहा, एक मर्तबा शाम में मुझे तलब फरमाया गया और वहाँ एक नौजवान आया। मैंने उस नौजवान से कहा कि मेरी नफ्स दिखाओ, तो उसने अपना बायां यानी उल्टा हाथ आगे किया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि शाही सिलसिले का आदमी होकर भी ये नहीं जानता कि नफ्स हमेशा सीधा यानी दायां हाथ दिखाया जाता है। उस वक्त मैं बादशाह की मौजूदगी की वजह से खामोश रहा और नफ्स देखकर दवा तजवीज कर दी। 1 माह इलाज के बाद वो नौजवान तंदुरुस्त हो गया, मगर मेरे दिल में अभी भी तजस्सुस मौजूद था कि आखिर ये मालूम कर सकूं कि वो अपना उल्टा हाथ क्यों दिखाता था। बिल आखिर ये मालूम करने में कामयाब हो गया, उसका दायां हाथ कटा हुआ था। बादशाह ने जब ये किस्सा सुन लिया तो कहा, अच्छा बताओ ये सब कैसे हुआ। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि शायद उसका दिल किसी खूबसूरत पर आ गया हो, शायद उसने चोरी भी की हो और लहसुन पुलाव भी खाया हो, इसलिए इसका पूरा बाजू कटा हुआ था। बादशाह ने हकीम की बात सुनी तो गुस्से से सरजी मैल होकर कहा, ये किस्सा तो लगता है तुमने अपनी तरफ से बना लिया और ये किस्सा किसी तौर पर भी गवैया की कहानी के मुकाबले में नहीं आता। मैं सबसे पहले तुम्हारा सर कलम कराऊंगा। हकीम की तरफ देखते हुए दर्जी फौरन बोला, हजूर मुझे मौका दें, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा किस्सा इस गवैया की कहानी से मुख्तलिफ होगा। बादशाह ने कहा, तुम लोगों की मौत मुझे यकीनी नजर आती है, चलो तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। ये कहानी दर्जी ने सांस घोटते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरा पेशा दर्जी का है, मैं सादे को सादा आदमी हूँ। जब मैंने उस गवैया को बाजार में सुना तो उसकी आवाज ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने उससे कहा कि आज रात मेरे घर आओ, मैं तुम्हारा गाना सुनूंगा और तुम्हें कुछ रकम दूंगा। वो खुश होकर आया और मेरी बीवी ने खाना तैयार किया। खाने में मछली निकाल
निकाली गई और सब ने बैठकर खाया। खाने के दौरान वो गवैया अचानक खट्टा सा महसूस हुआ और उसके हलक में कुछ उलझ गया। मैंने फौरन कांटे निकालने की कोशिश की, मगर वो जोर से खटक कर बैठ गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने हर तरीका आजमाया, हाथ डाले, कांटा निकालने को झूझ झोड़ा, फिर हकीम के पास ले जाने का सोचा ताकि वो बच जाए। मैंने उसे कंधे पर उठाया और हकीम के घर के सामने खड़ा कर दिया, मगर जब मैंने पीछे मुड़ा तो दिल के जज्बे और खौफ के बीच में वापस आ गया। इस तरह मामला बढ़ गया। मैंने जो किया वो खौफ और परेशानी में किया। मैंने सच कहा, मेरा इरादा कत्ल का ना था, मगर मेरी वो हरकत बायस बनी कि मामला खून में बदल गया। दर्जी ने अपनी आवाज में नदामत छुपाते हुए कहा कि इसने गवैया को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर नाकामी ने उसे गाफिल कर दिया और फिर खौफ गिरफ्तारी ने उसे ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया जिनके नतीजे उसने सोचे भी न थे। इसने अदालत में आईना दिल के साथ तफसील बताई कि वो लाश को हकीम के दरवाजे के सामने रखकर खुद क्यों वापस आ गया, क्योंकि वो इस धोखे में था कि शायद हकीम खुद बाहर आकर देख लेगा और मामला साफ हो जाएगा। फिर जब हकीम ने देखा तो लाश गिरी और सिलसिला आगे बढ़ गया। सब ने अपनी जगह और अपनी गलती फहमियों में डंडे उठाए और एक दूसरे पर इल्जाम दे दिया। बादशाह खामोशी से सबके किस्से सुनता रहा। जब दर्जी ने अपनी बात पूरी की तो बादशाह ने चंद लम्हे सोच के बाद ऐलान किया, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। हर एक ने अपनी हालत दिल और हालात वक्त के तहत काम किया, मगर जहाँ जाने इंसानी जाया होती है वहाँ ऐने इंसाफ की जरूरत नहीं है। बादशाह ने अपने मशीरों को और काजी को हुक्म दिया कि मामले की बारी बारी छानबीन की जाए। काजी ने मौके वकू और शवायद का जायजा लिया, मछली के खाने काटने का इम्कान और हकीम के पास लाश रखने की तरकीब, सब कुछ मिलाया। आखिरकार काजी ने कहा, ये गवैया की मौत तसादफी और गरारी नजर आती है। उसने नोटिस किया कि ये कोई भी शख्स वाज़े तौर पर कत्ल की नियत के साथ हरकत नहीं था। जहाँ तक गफलत या बेफिक्री का ताल्लुक था वो भी सजा के काबिल हद तक साबित नहीं हुई, बल्कि सब खौफ इल्जाम की लपेट में मुब्तला थे। बादशाह ने ऐलान किया, चनाचे साबित कत्ल सामने नहीं आया और हर एक ने हम मुश्किल हालत में काम किया, इसलिए मैं तुम सब में से किसी को मुरक्कब कसद कत्ल करार नहीं दूंगा। अलबत्ता दर्जी जो सबसे पहले जाए उम्मीद में चला गया और जिसकी हरकत से सारे शहर को उलझन का सामना करना पड़ा, उसे अवामी तौबा और एक सवाल की फलाही खिदमत का हुक्म दूंगा, ताकि तुम लोग सीखो कि खौफ में पढ़कर फरार या धोखा देना किसी अलमिया को हल नहीं करता। जो फरंगी मुलाजिम, हकीम या और कोई भी इस मामले में मुलविस हुआ, सबको उफू मिला। बस आइंदा मोहतात रहने की हिदायत दी जाती है। बादशाह ने साथ ही शहर में एक नसीहत का ऐलान भी जारी किया, जब भी कोई जिंदा जान खतरे में हो पहले उसे बचाने की कोशिश करो, फिर हिसाब किताब होगा। इल्जाम तराशी और जल्दी में सजा सुनाना इंसाफ नहीं। ये सुनकर लोगों में हल्की सुकून की लहर दौड़ गई। दर्जी अपनी गर्दन थोड़ा सा झुकाकर बादशाह की रहम दिली पर शुक्रगुजार हुआ। जिस गवैया की लाश ने शहर को हलाकर रख दिया था, उसके लिए दुआए मगफरत की गई और शहर ने ये सबक सीखा कि अफवाहों और जल्दी फैसलों से कितने बड़े नुकसान जहन्नम ले सकते हैं। कहानी का इबरत अमूज पैगाम ये था कि इंसानियत, हमदर्दी और ठहराव इंसाफ की पहली सीढ़ी है और खौफ गैरो वकू में छुप कर जाना अक्सर सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है।